بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں امن و امان کی صورتحال پر اے پی سی بلانے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں بلوچستان سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک ملک میں امن نہیں ہو سکتا۔ دہشت گردی کا ناسور ختم نہ کیا تو پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایک ٹولہ پاکستان میں انتشار کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ طالبان سے دل کا رشتہ بنانے والوں نے انہیں چھوڑا، جس سے دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا۔ کوئٹہ میں امن و امان کے حوالے سے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے ہماری کامیابیوں پر حیران ہیں۔ ملک کے لیے جان دینے والوں کے خلاف زہر فشانی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان دوبارہ ایسے حادثے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد وزیراعظم کا دورہ بلوچستان۔ شہباز شریف نے کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کی۔ آرمی چیف، وفاقی وزراء اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ پولیس اور سیکورٹی حکام کی بولان آپریشن سے متعلق وزیراعظم کو تفصیلی بریفنگ۔ اجلاس کے خطاب میں وزیراعظم نے کہا، ٹرین پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو رمضان کے تقدس کا بھی خیال نہیں تھا۔ واقعے سے نمٹنے کے لیے سیکورٹی فورسز نے کامیاب حکمت عملی اپنائی۔ زرار کمپنی نے مشکل صورتحال میں بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے 339 جانوں کو بچایا۔ جو زرار کمپنی ہے جو کہ تیار کی گئی ہے، ایسے ہی لوگوں کو جہنم رسید کرنے کے لیے انہوں نے پھر جو مشترکہ اسکیم بنائی، الحمدللہ اس کے نتیجے میں 339 ہمارے پاکستانی ان کو چھڑایا گیا وہاں سے جو جرغمال تھے، اور 33 جو تھے دہشت گرد ان کو جہنم رسید کیا گیا۔ وزیراعظم نے تحریک انصاف کی حکومت کو نشانے پر رکھتے ہوئے کہا، طالبان سے دل کا رشتہ بنانے والوں نے انہیں چھوڑا۔ یہ لوگ طالبان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ جو طالبان سے اپنا دل کا رشتہ جوڑتے اور بتانے میں تھکتے نہیں، انہوں نے ہزاروں طالبان کو دوبارہ چھوڑا۔ وزیراعظم نے کہا، دوست نما دشمن پاکستان اور فوج کے خلاف دہشت گردی پر اتر آئے ہیں۔ یہ ٹولہ پاکستان میں انتشار کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ ہمارا مشرقی دشمن زہر اگل رہا ہے۔ اس سے جس طرح میڈیا پر پیش کیا گیا وہ ناقابل بیان ہے۔ ہمسایہ ملک نے جس طرح اس کو اپنے مختلف پلیٹ فارم سے اس کو نشر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یعنی عقل دنگ رہ جاتی کہ یہ گھس بیٹھیے ملک کے اندر، دوست نما دشمن پاکستان کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف اور فوج کے خلاف کس طرح کی دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے خیبر پختونخوا کو 600 ارب روپے دیے گئے۔ صوبے میں انسداد دہشت گردی کے خلاف ایک بھی محکمہ قائم نہیں کیا گیا۔ دیکھنا ہوگا خطیر رقم کہاں خرچ ہوئی۔ ملک کی ترقی کے لیے امن و امان کا قیام ناگزیر۔ امن کے لیے سیکورٹی فورسز کو تمام وسائل مہیا کریں گے۔ یہ وقت سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا نہیں، قومی یکجہتی و اتحاد کا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، ہم نے مل کر کام کرنا ہے۔ قومی اسمبلی میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے خلاف متفقہ قرارداد منظور۔ قرارداد کے متن میں جعفر ایکسپریس واقعے کی شدید مذمت۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے قرارداد پیش کی۔ ایوان میں پیش کردہ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ قومی سلامتی سے متصادم نظریات کو پھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایوان حادثے میں جاں بحق ہونے والے معصوم شہریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے، بہادر سیکورٹی فورسز کی ستائش کرتا ہے اور بلا تفریق کے رنگ و نسل عوام سے دہشت گردی کے خلاف منظم ہونے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ قومی اسمبلی دہشت گردی کے خلاف یک زبان۔ معمول کا ایجنڈا معطل۔ جعفر ایکسپریس پر ہونے والے حملے کے خلاف ایوان میں بحث کے بعد متفقہ مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی۔ دوران اجلاس حکومت اور اپوزیشن کی ایک دوسرے پر بھی تنقید پی ٹی آئی خواجہ آصف کے نشانے پر رہی تو اپوزیشن نے بھی وزیر دفاع کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ بلاول بھٹو نے ایک بار پھر نیشنل ایکشن پلان مرتب کرنے کی تجویز دے دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سانحہ جعفر ایکسپریس کے خلاف پورا ایوان ایک آواز بن گیا۔ شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کے ساتھ متفقہ مذمتی قرارداد بھی منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ایوان حادثے کے شہداء کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی اور بہادر سیکورٹی فورسز کی ستائش کرتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، جعفر ایکسپریس واقعے پر افواج نے ملک کو بڑے نقصان سے بچایا۔ انہوں نے پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پروپیگنڈا کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے جس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا ہے وہ ساری قوم نے وہ پڑھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بولے، ہم ماضی سے زیادہ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ ہم ماضی سے زیادہ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت جناب اسپیکر وہ یونٹی
वो पॉलिटिकल कंसेंसस जो उस वक्त हम कामयाब थे अपनाने में, इस वक्त हम वो कंसेंसस आपस में नहीं बना सके। असद कैसर और बैरिस्टर गोहर ने अलग अलग खिताब में सानेहा जाफर एक्सप्रेस की मजम्मत की। अमन अमान की सूरत हाल बलूचिस्तान और आपकी सूबे सिंध में भी जो कच्ची के डाकुओं का राज है और कच्ची के डाकुओं से लोग तंग है, और पंजाब में भी जो कच्ची के डाकू है, इसके लिए एक कलेक्टिव डिसीजन करना चाहिए और सही मानों में जरूरत इस बात की है कि इसके लिए नेशनल कंसेंसस पैदा की जाए। शेर अफजल मरवत बोले, फैज हमीद के साथ साथ जनरल बाजवा को भी अंदर किया जाए। महमूद खान चिकजई ने कहा, हमने दूसरों की जंग लड़ी, अमरीका के मुफाद का तहफुज किया, ये हमारा अपना जुर्म है। नेशनल पार्टी के रुकन असम्बली पुलेन बलोच बोले कि बलोचिस्तान का मसला लापता अफराद है, मेरी पार्टी इजाजत दे तो अख्तर मेंगल की तरह मैं भी ऐवान में नहीं बैठूंगा। कौमी असम्बली में कल भी सदारती खिताब और जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर बहस जारी रहेगी। लाहौर में बेइजिंग अंडरपास में शहरी पर तशद्दुद और फायरिंग का वाकया, पुलिस का बर वक्त एक्शन, 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। DIG ऑपरेशंस ने वाकये का नोटिस लेकर खुसूसी टीम तश्कील दी। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना था कि वाकये में मुलव्वस बाकी मुल्जिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बताएं कि लाहौर में बेइजिंग अंडरपास में शहरी पर तशद्दुद और फायरिंग का वाकया, पुलिस का बर वक्त एक्शन, 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर के इलाके धर्मपुरा में फायरिंग और तशद्दुद से मुतासिरा शहरी मंजर आम पर आ गया। शहरी इमरान कपड़े का ताजिर है जो रायवंड जा रहा था। शहरी का कहना है कि वो कपड़े की खरीदारी के लिए जा रहा था कि मुल्जिमान ने पुल के नीचे गाड़ी पर फायरिंग कर दी। न्यूज़ ने इमरान का वीडियो बयान हासिल कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का स्कूल मील प्रोग्राम कामयाबी से जारी। वज़ीर आला स्कूल मील प्रोग्राम के आगाज़ से तलबा में ग़िज़ाई कमी के असरात में वाज़ेह कमी देखने में आई है। पंजाब हुकूमत का लैपटॉप स्कीम की लागत में 17 अरब 93 करोड़ इजाफा, अब 42,000 की बजाय 1,12,000 लैपटॉप्स खरीदे जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने टांक जंडोला में धमाके और सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर हमले की मजम्मत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला का स्कूल मील प्रोग्राम, बच्चों में ग़िज़ाई कमी के लिए बड़ा इक़दाम। स्कूल मील प्रोग्राम के पहले मरहले में 1 अरब 78 करोड़ रुपए बचत हुई। स्कूल मील प्रोग्राम के चंद माह में 55,000 से ज़ायद नए तुलबा ने इनरोलमेंट का मुनफरिद रिकॉर्ड बना दिया। मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और DG खान में 4 करोड़ मिल्क पैक स्कूलों में पहुँचा दिए गए। स्कूल मील प्रोग्राम के आगाज में मौजूद तलबा की तादाद 3,61,000 से बढ़ाकर 4,16,000 हो गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की सरबराही में पंजाब काबीना इजलास में मजीद 70,000 लैपटॉप्स खरीदने की मंजूरी। स्कीम की लागत 9 अरब 96 करोड़ 67 लाख से बढ़ाकर अब 27 अरब 99 करोड़ 71 लाख रुपए कर दी गई। मरीम स्पीड का पंजाब में लैंड रिफॉर्म्स का बड़ा इकदाम सामने आ गया। पंजाब हुकूमत सूबे में शहरी और इलाकाई तरक्की को मुनज़्ज़म करने के लिए पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का गंगाराम अस्पताल में इंतजामिया की मुबैना गफलत से नौमौलूद बच्ची के झुलसने का सख्ती से नोटिस। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने सिक्योरिटी हेल्थ से रिपोर्ट तलब कर ली। आगे बढ़ते बात करेंगे। सिंध असम्बली ने दरिया सिंध से शह मुतनाज़ केनाल मनसूबे के खिलाफ करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पेश की, जबकि करारदाद की हिमायत तमाम पार्लिमानी पार्टियों ने की। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना था कि दुनिया भर में किसी भी बड़े मनसूबे से कबल फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाती है और किसी एक इलाके के फ़ायदे को सबके फ़ायदे से मशरूत नहीं किया जा सकता। सिर्फ पानी का मसला नहीं बल्कि हमारी बका का मसला है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। सिंध असम्बली का इजलास स्पीकर अवैस कादिर शाह की सदारत में शुरू हुआ। पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़ियाउल हसन अल नजार की वर्क ऑफ बिजनेस को मुअत्तल करने की दरखास्त को स्पीकर ने मंजूर कर लिया। वजीर आला सिंध ने नई किनारों की तामीर के खिलाफ करारदाद पेश की। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना था, दुनिया भर में किसी भी बड़े मंसूबे से कबल फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाती है और किसी एक इलाके के फायदे को सबके फायदे से मशरूत नहीं किया जा सकता। सिर्फ पानी का मसला नहीं बल्कि हमारी बका का मसला है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। फूड शॉर्टेज की पेशन गोइयां कर रहा है वर्ल्ड बैंक 2021-22 में, और 2021-22 में 2025 की बात कर रहा है कि 2025 में पानी की जो शॉर्टेज होगी, और यहाँ पे और एक और भी बात कर रहा है सूबों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे।
अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने ऐवान से खिताब करते हुए कहा, नई नहरों की तामीर के खिलाफ इसी फॉर्म पर की जाए जहां उसकी इजाजत दी गई थी। ऐवान में नई नहरों के खिलाफ पेश की जाने वाली करारदाद की मुतफिका मंजूरी के बाद स्पीकर ने इजलास जुम्मे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन मंजूर हुसैन और साथी रिपोर्टर के साथ कामरान सुहेल, नियो न्यूज, कराची। पंजाब असम्बली के इजलास में हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव को बंद करने की इस्तदा कर दी। पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक जैसे महकमे को सफ़ेद हाथी करार दे दिया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने ऐवान में पानी के मामले पर कहा कि सिंध और पंजाब का पानी का मसला है, अगर पंजाब सिंध का हक लेता है तो हमें नहीं लेना चाहिए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली में जाफर एक्सप्रेस में दहशतगर्दी के नतीजे में मरहूम फौजी एहलकारों और MPS सोनिया अली के भाई हसनैन रजा के इंतकाल के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। अपोजिशन ने बानी PTI की रिहाई के लिए पंजाब असम्बली में दबंग एंट्री की और ऐवान शदीद नारेबाजी से गूंज उठा। स्पीकर ने ऐवान में प्ले कार्ड डिस्प्ले ना करने की हिदायत कर दी। स्पीकर ने पानी के मामले पर कहा, अगर पंजाब सिंध का हक लेता है तो हमें नहीं लेना चाहिए। अगर सिंध और पंजाब पानी पर मुआहदा है तो ये बड़ा मसला नहीं जिसे हल नहीं कर सकते। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक को बंद करने की इस्तदाद कर दी। बोले, हमारे मुल्क में बहुत से सफेद हाथी हैं जो वसाइल को खा रहे हैं। हुकूमती रुकन शहबाज अली खोखर ने महकमा इमदाद बाहमी का जवाब 10 माह बाद आने का शिकवा कर डाला। बोले कि 10 माह बाद एक सवाल का जवाब आएगा तो 5 सालों में सिर्फ 5 सवालों के जवाब आएंगे। डिप्टी स्पीकर जफर इकबाल ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के इख्तियारात से तजावुज करने के मुतालिक मामला कमेटी के हवाले कर दिया। ऐवान में अपोजिशन रुकन मोहन शाह ने तहरीक अल्तवाए कार पेश की जिसे मुतलका कमेटी के हवाले कर दिया गया। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर वकास गौरी के साथ बिलाल मिर्जा, नियो न्यूज, लाहौर। हुकूमत ने नेट मीटरिंग कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी। फैसला सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन की बढ़ती तादाद और बिजली सार्फिन पर माली बोझ कम करने के लिए किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। नए कानून के तहत अब हुकूमत नेट मीटरिंग सार्फिन से 10 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के साथ कारोबार का इख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन इंडेक्स में 1009 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 1,15,000 की सतह पर बहाल करने में कामयाब। 100 इंडेक्स 1,15,094 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तफसीलात काशिफ मुनीर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के साथ कारोबार का इख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन इंडेक्स में 1009 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,15,000 की सतह बहाल करने में कामयाब, जबकि 1,15,094 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 80 अरब रुपए इजाफे के साथ 14,128 अरब रुपए हो गई। आज ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,15,247 पॉइंट्स और कम तरीन सतह 1,14,429 रही। 25 अरब रुपए मालियत के 38 करोड़ हसीस के सौदे हुए। सीमेंट, कमर्शियल बैंकों, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी समेत सेक्टर्स में खरीदारी देखी गई। 232 कंपनियों की हसीस की कीमतों में इजाफा और 156 में कमी हुई। मूडीज की जानिब से पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर के आउटलुक को मजबूत करार देने पर मार्केट मजबूत रही। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,14,084 पॉइंट पर बंद हुआ था। इंटर बैंक में डॉलर महंगा। अमरीकी डॉलर 8 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 269 रुपए 97 पैसे से बढ़कर 280 रुपए 5 पैसे पर बंद हुआ। सोने की मार्केटों में कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 2800 रुपए महंगा हो गया। सोने की फी तोला कीमत 3,09,300 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 2,400 रुपए से बढ़कर 2,65,174 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में $27 इजाफे के साथ फी औंस सोना $2,942 पर जा पहुंचा। काशिफ मुनीर, नियो न्यूज, कराची। कराची के मकामी होटल में तुर्किश कार्गो के ज़ेरे एहतमाम इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में तुर्किश कार्गो के आला अफसरान ने शिरकत की और खुश नसीबों को कुरानबाजी में जहाज के टिकट्स भी दिए गए। तुर्किश कार्गो का पाकिस्तान में फ्लाइट ऑपरेशन कामयाबी से जारी।
कराची के मुकामी होटल में तुर्कश कार्गो की जानिब से अफ्तार डिनर का एहतमाम। तकरीब में कौंसल जनरल तुर्किया जमाल सांगू, तुर्कश एयरलाइन के वाइस प्रेसिडेंट अली तुर्क, तुर्कश कार्गो कराची के रीजनल मैनेजर मोहम्मद इमरान और लाहौर के रीजनल मैनेजर जाफर हुसैन ने भी शिरकत की। वाइस प्रेसिडेंट तुर्कश कार्गो सेल्स खालिद तंजर ने पाक तुर्किया दोस्ती पर रोशनी डाली और कहा, गुज़िश्ता कई बरसों से तुर्कश कार्गो का ऑपरेशन पाकिस्तान में कामयाबी से जारी है। Pakistan is one of our key countries in the region that we are supporting and investing. Comparing 2023, in 2024 we increased our cargo tonnage twice, and this year we are investing even more with cargo freighters, with multimodal cargo transportation and increasing the passenger capacity. We will keep investing and be present in the market. पेफा चेयरमैन जमील अहमद और ACAAP चेयरमैन मोहम्मद शुजात ने कहा कि तुर्कश कार्गो पूरी दुनिया में अपनी एक नुमाया पहचान रखती है। तुर्कश कार्गो फैमिली का हिस्सा बनने पर खुशी है। We people are also having many times there is a congestion from Karachi, from Lahore, the cargo to other cities as well. I would suggest if it is shared with the Air Cargo Agent Association, so that each and every cargo agent will have this access, or so that everybody would be entertained, everybody would be benefited. तकरीब के अख्ताम पर कुरानदाजी के जरिए मुफ्त एयर टिकट भी तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ काशिफ मुनीर, न्यूज़ कराची। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत NHA मेंबरान का इजलास। वफाकी वज़ीर मवासलात ने NHA के मेंबरान को 2 महीने की डेडलाइन दे दी। इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर मवासलात का इजहार बरहमी, कहा नेशनल हाईवे अथॉरिटी अपनी रविश बदले, सुस्त रवि नहीं चलेगी। तमाम मेंबरान मनसूबों में शफाफियत यकीनी बनाए। उन्होंने वार्निंग दी कि जो अफसर काम नहीं करेगा उसे घर जाना होगा। शाहराहों की बर वक्त तकमील अव्वलीन तरजीह, ताख़ीर से लागत में इजाफा हुआ। 2 माह बाद कारकर्दगी बेहतर ना बनाने वाले फारिग कर दिए जाएंगे। जिन मनसूबों पर ज़्यादा काम हो चुका है उन्हें पहले मुकम्मल करेंगे। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की शाहराहों के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। नाज़रीन, न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।